Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So yesterday, result of RBI Grade B came, and I am happy to share with you few of our subscribers got success in such a tough competition. They posted the comment on the channel, and in turn, I posted these screenshots of these comments in the community column. I am happy that they are able to achieve such a fine result in such a competitive environment. I congratulate them and wish successes in next phase and desire that they should become Grade B officer of Reserve Bank of India this year. Whenever I post such type of screenshots, majority of our subscribers are happy. But I observe some people out of jealousy start putting wrong comments also on such screenshot. Some have wrong feeling that I am trying to exhibit these screenshots to claim any credit. I don't claim any credit. People know this is an excellent platform. Thousands of our channel subscribers got success and they are pursuing their banking, insurance and other sector career. They are sitting there. They are the ambassador of this channel and there is no need of any credit taking or publicity of this channel by me. I am doing my job. I am following religiously a concept of karma. I am doing my karma, you are doing your karma, and ultimately we are achiever. The purpose of such screenshots is to give you inspiration. Purpose of the screenshots is to give you encouragement, so that you may also feel if these persons can achieve this feat, I can also. That is the sole purpose. I am not offering any course. I am not teaching these subjects. So I don't require any publicity. I am simply helping you by right advice at right time so that you travel the right path. So the people, those are having unnecessary ill will against me, I request them, be sane, leave such type of feelings and learn from others instead of criticizing others. If somebody has cleared the grade B and out of excitement in posting the comment, if he has done some spelling mistake, it may be due to auto prompt also. Don't look into that. Look into his or her hard work in cracking this exam. Rather, you should try to ask him the strategy, the way he cracked this examination. Appreciate these people, encourage these people instead of simply finding fault in their spelling or in language. They have cleared it. If they have cleared it, you need not scrutinize them. Scrutiny will be done by RBI board. Don't bother. Do your work. Okay? This is my advice to these people. Those are unnecessary trolling others. Learn from others. That will help you. Don't find mistakes in others. That will take you nowhere. Learn from others. This is a channel based on right advice at right time. And everything that is posted on this channel is backed by facts and figures. And you need not have iota of doubt. Okay? I have already lived my life. I have left the bank at a position when I was at peak of my career. So you need not bother about me. Bother about yourself. I am helping you. Take this help. If you don't need this help, leave the channel. There is no issues on that. But don't troll the fighters. If they have reached this level, we should appreciate them.
Instead of finding fault in them, they will become RBI grade B officer. They will sit on the chair. You need not bother. You should bother. Can you become RBI grade B officer following their footsteps? That should be your spirit. So another issue is on that video, some of our subscribers raised the issue कि sir, we qualified RBI grade assistant grade and we are awaiting our final result. We are from RBI Mumbai, Bhopal and Guwahati circles, but result is not yet declared. Please raise our voice and appeal to the Reserve Bank of India to declare our result. So through this video, I appeal that the result of these three areas, that is Mumbai, Bhopal and Guwahati, is also released for RBI assistant grade, so that these people, those are awaiting the result for 1.5 years, they get their job. I am with them. God bless them. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल RBI ग्रेड बी का रिजल्ट आया. इस रिजल्ट के आते ही कुछ हमारे सब्सक्राइबर इसमें कामयाब हुए. बहुत टफ कंपटीशन है. इस टफ कंपटीशन के बावजूद वो कामयाब हुए. अब जब कामयाब हुए तो उन्होंने अपना कमेंट भेजा तो नेचुरल है कि उसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेके हम अपने कम्युनिटी में लगाते हैं. मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि जो हमारे बाकी चैनल सब्सक्राइबर्स हैं उनको इनकरेजमेंट मिले कि देखो इन लोगों ने अचीव कर लिया है, अब की बार मैं अचीव करूँगा. ये मकसद होता है. ये मकसद नहीं होता कि मैं कोई क्रेडिट ले रहा हूँ, मेरी वजह से इनका हो गया. मुझे कोई क्रेडिट चाहिए ही नहीं. मेरा तो क्रेडिट फुल है. ठीक है ना. हजारों लोगों को नौकरी मिल चुकी है इस चैनल को फॉलो करने से. हजारों लोग आज डिफरेंट बैंकों में बैठे हैं, फिजिकली बैठे हैं सीट पे. जब आप उनसे बात करेंगे वो खुद ही बताएंगे कि हमने अनिल अग्रवाल सर का चैनल फॉलो किया था, उससे हमें मदद मिली थी. तो मुझे तो क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो कोई कोर्स थोड़ा ना बेच रहा हूँ जो मुझे कोई क्रेडिट चाहिए कि हाँ मैंने इतने पास हो गए, मेरा कोर्स खरीद लो. मैं तो कभी कोई कोर्स बेचता ही नहीं हूँ आपको, तो मुझे किसी क्रेडिट की जरूरत नहीं है. कुछ लोगों ने उसके ऊपर नेस्टी कमेंट्स किए, क्रिटिसाइज किया इन लोगों को, जो सही नहीं है. मेरी दृष्टि से सही नहीं है. मकसद क्या है ऐसे स्क्रीनशॉट्स लगाने का? कुछ प्रूव करना नहीं है. ये अपने दिमाग में से जिन लोगों के कीड़ा है निकाल दो इस कीड़े को. कुछ अच्छा सोचना सीखिए जिंदगी के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो. वास्तविकता ये है कि जब कोई व्यक्ति खुश होता है, जब हम उसको मुबारकबाद देते हैं और उसके मैसेज को स्क्रीनशॉट को लगाते हैं कम्युनिटी में, तो हम उसको ऑनर करते हैं. इट इज़ ए ऑनर टू देम. ये मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, ये मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ और उनको ऑनर कर रहा हूँ. और अगर एक्साइटमेंट में कोई व्यक्ति कमेंट लिखते समय कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर गया, कई बार प्रॉम्प्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, लिखना कुछ चाहते हैं लिखा कुछ और जाता है, और एक्साइटेड आदमी होता है वो पढ़ता ही नहीं है अपनी लैंग्वेज को और वो पोस्ट कर देता है कमेंट को, क्योंकि वो तो खुश है. उसकी तो सिलेक्शन हुई है, उसकी तो जिंदगी में वो अचीवमेंट हुई है जो कभी किसी की होती नहीं है. तो वो इतनी बारीकी में नहीं जा रहा कि स्पेलिंग सही है कि नहीं है. वो तो सिर्फ अपनी भावना को एक्सप्रेस कर रहा है. अगर उसने एक्सप्रेस कर दिया और एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उससे क्या हो गया भैया? वो तो सिलेक्ट हो गया ना, वो तो आरबीआई की उस अच्छी सीट पे बैठ जाएगा. हमें उसको ग्रीटिंग्स करना चाहिए. हमें उससे पूछना चाहिए कि भैया तेरा सिलेक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, हमें भी मदद करो. हमें खुश होना चाहिए कि हमारे चैनल के कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो ये कामयाबी पाने में सफल हुए हैं. हम भी अगली बार सफल होंगे. उनकी कमियां निकालने में, उनको ये कहने में कि अब आरबीआई का क्या होगा, ऐसी स्पेलिंग है. अरे आरबीआई की सिलेक्शन प्रोसीजर को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं. इट इज़ ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. उनको पता है हमें किसको लेना है किसको नहीं लेना है. ये उन तक छोड़ दीजिए. और जो चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं 100% जेन्युइन है. और यही कारण है कि आज हजारों की तादाद में राइट एडवाइस एट राइट टाइम लेके लोग
बैंकों में बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो हैं असली एम्बेसडर इस चैनल के, जो लोगों को गाइड कर रहे हैं। और उन्हीं की वजह से आज ये चैनल आगे बढ़ रहा है और लाखों लोगों को मदद कर रहा है अपना कैरियर बनाने में। सही रास्ता ये है कि हम दूसरे से सीखें, दूसरे की खुशी में खुशी देखें, ना कि उसकी खुशी देख के हम उसको उल्टा सीधा बोले। ये मेरी सलाह है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 लोग अगर इस तरह की बातें लिखते हैं उससे कोई चैनल को फर्क नहीं पड़ता। चैनल अपना काम करता रहेगा। इस चैनल का उद्देश्य है राइट एडवाइस एट राइट टाइम, और ये करता रहेगा। जिन लोगों को तकलीफ है, जिन लोगों को दुख होता है, छोड़ दे चैनल। कोई आपको बुलाने नहीं गया कि आओ चैनल उसको सब्सक्राइब कर लो, मैं तो कहता ही नहीं हूँ। जिनको अच्छा लगता है, जिनको फायदा हो रहा है, जो लोग एक दूसरे से पूछ के आते हैं, वो इस चैनल पे आते हैं, और ये उद्देश्य चलता रहेगा। 1 लाख लोगों की मैंने मदद करनी है नौकरी पाने में, वो अपने मैं उद्देश्य पे चलता रहूँगा। ठीक है। अब दूसरा मुद्दे पे आते हैं कि जब ये लोग सेलेक्ट हो गए, अब मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और विश करता हूँ कि उनका इंटरव्यू प्रोसेस भी क्लियर हो और वो अल्टीमेटली आरबीआई ग्रेड बी में सेलेक्ट हों और अपनी पोस्टों पे विराजमान हों। इसके बाद इसी वीडियो पे कुछ हमारे कैंडिडेट हैं जो कि आरबीआई असिस्टेंट के अंदर क्वालिफाई हो गए थे और फाइनल रिजल्ट अवेट कर रहे हैं एलपीटी के बाद। और ये हैं मुंबई से, भोपाल से और गुवाहाटी एरिया से। इनका कहना है कि सर हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 1.5 साल हो गया, हमारी आप आवाज़ उठाइए, हमारे बारे में एक वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये अपील करूँगा कि आरबीआई इनका रिजल्ट जल्दी से जल्द घोषित करे ताकि ये लोग अपनी नौकरी पर लगें। इनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं और इनके लिए मैं अपील भी करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।